I am Dr. Abhishek Sharma. I am associated with Center for Sight Group of Eye Hospitals, and I am a consultant of ophthalmology in anterior segment, that is cataract, refractive, as well as glaucoma. As you all know, there are a long list of diseases which typically affects the geriatric age group, that is above 40 to 50 years of age. The major two of them which mainly lead to the morbidity as well as mortality in terms of eye are cataract and glaucoma. So I would just like to discuss a few important points which everyone above the age of 50 years should get regular checkup, because they are probable candidates of developing these two diseases, which if not taken care of at the right time can lead to a rapid decrease in the vision. The first of it is cataract. Everybody knows what cataract is. Cataract is basically an opacity or whitening of the lens that is inside the eye. So it's an age-related process. 90% of the cataracts are usually senile or age-related. But rarely cataract can also develop at an early age. And the important causes of an early development of cataract are certain systemic diseases such as diabetes mellitus and other causes, as well as certain medicines if you are taking for long term, such as oral steroids. So after the age of 50 years, annual mandatory checkup is very important to rule out cataract. Specifically, if you are a known diabetic or hypertensive, you should get it more aggressively done. Cataract, if taken care at the right time, can lead to preservance of the vision, as well as the latest technologies that we have nowadays. Now, the latest development in cataract surgery is a micro-incision cataract surgery, where the incision for the surgery has gone down below 2 mm level. So it is just a sub 2 mm incision that we do, and then we do the cataract surgery. So in such kind of technologies, it is always better if the cataract is taken care at an early time. तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने रेगुलर चेकअप्स कराने हैं. अगर कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है और अर्ली स्टेज पे है, तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम हो रही है. इफ ही इज हैविंग विजुअल प्रॉब्लम्स सच एज कि दूर में देखने में अगर धुंधलाहट आ रही है, रेगुलर डिस्टेंस पे जो आपको चेहरे क्लीन दिखते थे या टेलीविजन क्लीन दिखता था वो नहीं दिख रहा है, तो आपको अपने रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए आई डॉक्टर से. और उसमें अगर कैटरेक्ट आता है तो माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी के लिए जितना अर्ली स्टेज में कैटरेक्ट हम करें उतना बेटर रहता है, क्योंकि रिकवरी फास्टर होती है. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लास्ट 1.5 साल में ये आई है कि अब हमने ब्लेड्स यूज करने बंद कर दिए हैं. द लेटेस्ट रेवोल्यूशन कैटरेक्ट सर्जरी में जो है वो फेमटो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी है. सो वी हैव स्टॉप्ड यूजिंग ब्लेड्स इन कैटरेक्ट सर्जरी. ब्लेड्स आर अ हिस्ट्री. नाउ lasers are used to enter the eye and do the initial 2-3 steps of the cataract surgery, and the rest of taken care is as routine what we used to do earlier. So both this micro-incision cataract surgery and the femto laser assisted cataract surgery should be done at a little early stage so that the recovery is better, as we are using a very small incision to do the surgery. The next important thing that I like to go forward is about glaucoma. Glaucoma को लोग काला मोतिया भी कहते हैं, और ये सफेद मोतिया या कैटरेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा खतरनाक है. वो इसलिए क्योंकि ग्लोकोमा जो डैमेज करता है वो एक प्रोग्रेसिव डैमेज है और इरिवर्सिबल डैमेज है. मतलब कैटरेक्ट अगर आता है और हम 3 से 6 महीने डिले भी करते हैं कैटरेक्ट सर्जरी को, तो सिर्फ कैटरेक्ट को थोड़ा डिले करने से यूजुअली रिकवरी या फाइनल रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर हम ग्लोकोमा को नजरअंदाज करते रहें तो वो परमानेंटली विजन को कम कर सकता है. ग्लोकोमा बेसिकली डिजीज जो है वो हमारे आंख के पिछले हिस्से पे जो ऑप्टिक नर्व या नस होती है जो रोशनी को दिमाग तक लेके जाती है, उस ऑप्टिक नर्व को स्लोली डैमेज करता रहता है. अनफॉर्चुनेटली ग्लोकोमा के पेशेंट्स में अर्ली केस में 90% पेशेंट्स में कोई सिम्टम्स नहीं होते. सिर्फ 10% पेशेंट्स में रेडनेस, बार बार पेन होना, साथ में दिखने में थोड़ी धुंधलाहट ये आ सकती है. तो 90% पेशेंट्स का जब तक ग्लोकोमा एडवांस नहीं हो जाता यूजुअली उनका पता नहीं चल पाता है. इसीलिए 50 इयर्स के बाद स्पेसिफिकली जो मैं 5 चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, फैमिली में किसी को भी काला मोतिया पहले हो चुका है इमीडिएट फैमिली में, और साथ ही साथ अगर आप स्टेरॉइड्स या किसी लंबे समय के ट्रीटमेंट पे हैं, तो आपको अपना रेगुलर चेकअप्स 50 इयर्स के बाद जरूर कराना चाहिए. रेगुलर चेकअप्स में हम देखते हैं अगर आई का प्रेशर, जैसे बॉडी का एक प्रेशर ब्लड प्रेशर होता है, वैसे आई का भी एक प्रेशर होता है. अगर वो प्रेशर बढ़ा हुआ है, साथ ही साथ अगर हम नस जो हमारी ऑप्टिक नर्व है उसको हम चेक करते हैं, उसमें अगर डैमेज हमें लगता है तो ग्लोकोमा की शुरुआत हो सकती है. तो ये सिर्फ आप रेगुलर चेकअप्स कराएंगे तभी आप ये पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ें शुरू हो रही हैं. इसलिए आफ्टर 50 जो चीज़ें मैंने बताई वो सब हो तो अपना एक एनुअल चेकअप जरूर कराएं आई डॉक्टर से, और उसमें हम पकड़ सकते हैं अर्ली स्टेज में. तो अगर अर्ली स्टेज में ग्लोकोमा को हम पकड़ लेते हैं तो 95% पेशेंट्स में जो ट्रीटमेंट है वो मेडिकली या ड्रॉप्स के फॉर्म में होता है, जिससे कि आई का प्रेशर कम हो जाता है और डैमेज अपनी जगह रुक सकता है. लेकिन अगर हम इसको नहीं अंदाजा करेंगे और नजरअंदाज करते रहेंगे तो लेट स्टेज में डायग्नोसिस करने पे जितना डैमेज हो चुका है वो रिकवर नहीं हो सकता. इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस इज द ट्रीटमेंट इन केसेस ऑफ ग्लोकोमा.